નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે રિદ્ધિ અને હું છું હંસિની. આજે એ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવી છે જે લાંબા સમયથી ગુજરાતની અંદર ચાલી રહ્યો છે અને એમના પડઘા આજે રાજસ્થાનના જયપુરમાં પડ્યા છે. આપણને બધાને ખબર છે કે હંસિની આપણે કયા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ. આજે આપણે ગોંડલના એ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવાની છે કે જેમાં હવે એક નવો વળાંક સામે આવ્યો છે. એ એટલા માટે કારણ કે જે પડઘા રાજસ્થાનના જયપુરમાં પડ્યા છે, સંખ્યા ભલે લોકોએ ઓછી જોઈ હોય કે બહુ માણસો ઓછા આવ્યા હતા, જે વિરોધ પ્રદર્શન થયું, જેમને ન્યાય અપાવવા માટે મેદાનમાં આવ્યા હતા, પણ એક હુંકાર ત્યાંથી એ થયો છે કે જો અમે રાજસ્થાનથી પહેલા ભીલવાડાથી અમે જયપુર જઈ શકતા હોય, અમે સંસદની અંદર આ મુદ્દો ઉઠાવી શકતા હોય, તો પછી ગુજરાતનું અમદાવાદ અને ગાંધીનગર પણ દૂર નથી. એટલે સવાલ એ થયો છે કે જો જયપુરમાં ભલે સંખ્યા ઓછી હોય, ભલે ક્યાંક મનોબળ એમને ઓછું મળ્યું હોય, પણ સવાલ એ છે કે જો એ લોકોએ હુંકાર કરી દીધો છે, કારણ કે આ વખતે જાટ સમાજ છે તે શાંત બેસવાના મૂડમાં નથી. કહી દીધું છે કે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર અમારી પાસે જ છે, અમે ત્યાં આવીને વિરોધ કરીશું. હવે આ મુદ્દાની અંદર એક નવો વળાંક એ સામે આવ્યો છે કે એમના જે એડવોકેટ છે જયંત મુંડ, તેમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર પિટિશન ફાઇલ કરી છે બે મુદ્દાને લઈને. સૌથી પહેલા તો કે 2 ફોરેન્સિક રિપોર્ટ કેમ બનાવવામાં આવ્યા, અને બીજી વાત છે કે જે બસની અંદર જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બસથી અકસ્માત થયો છે રાજકુમાર જાટનો, તો એ બસનો માલિક અને જે ગાડી ચલાવી રહ્યો તો બસ ચલાવી રહ્યો તો એ ડ્રાઈવરને જયરાજસિંહ જાડેજા સાથે શું સંબંધ છે. આ બંને વાત ઉપર અત્યારે હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવાની છે. એટલે સૌથી પહેલા એ જોવાનું છે કે હાઈકોર્ટ કયા મુદ્દા ઉપર આવવાની છે. સૌથી પહેલા આપણે ચર્ચા એ કરી લઈએ કે જે ગુજરાતની અંદર જે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જે પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે 2 પોસ્ટમોર્ટમ થયા છે. પહેલામાં 17 ઈજાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ડોક્ટરે એવું કીધું છે કે 17 ઈજા છે. બીજો ફોરેન્સિક જે પોસ્ટમોર્ટમ થયો એમાં 42 ઈજાઓ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો. અને જે રાજકુમાર જાટને જે ઘા વાગ્યા છે એ જૂના છે, તાજેતરમાં જ્યારે થયા હોય, જેમ કે બસના અકસ્માત સાથે ભટકાય અને પછી એમનું મોત થયું હોય, તો આ એ ઈજા નથી. કોઈ કે એમને માર્યું છે એમની આ ઈજા છે. એટલે આ વખતે એમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ડોક્ટર ધવલ ગોસાઈ છે કે જેમણે પોસ્ટમોર્ટમ કર્યો છે કે એમના ઉપર કોણે દબાણ કર્યું છે, પોલીસે કે પછી જયરાજસિંહ જાડેજાએ, કે કેમ 2 વખત પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ તૈયાર કરીને આપવા પડે છે અને બંનેમાં ભેદભાવ કેમ સામે આવે છે. આ મુદ્દા ઉપર પણ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે. અને બીજો મુદ્દો એવો છે કે જે બસ ચલાવી રહ્યો છે જે ડ્રાઈવર, એમની સાથે અને જે બસનો માલિક છે એ બંને સાથે જે જયરાજસિંહ જાડેજા છે એમને શું કનેક્શન છે, કે આ બધું એમને ક્યાંક સાથ સપોર્ટ આપે છે કે અમને બચાવવા માટે. એટલે આ બધો આખો મુદ્દો અત્યારે હાઈકોર્ટની અંદર પહોંચ્યો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ હવે આમાં શું કરે છે એ પણ જોવાનું છે. પણ તે જ્યારે સૌથી પહેલા જે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ જોયા હતા એમાં તને શું લાગ્યું હતું? રીતિ, ફોરેન્સિક રિપોર્ટ વિશેની વાત કરવામાં આવે તો ખાસ કરીને જ્યારથી ફોરેન્સિક રિપોર્ટ સામે આવ્યા હતા ત્યારથી અનેક એવા તર્ક વિતર્ક સર્જાયા હતા કે શું ખરેખર તેમનો અકસ્માત થયો છે કે પછી હત્યાની શંકા છે. હત્યાની શંકા ત્યારે જ કરવામાં આવી કે જ્યારે તેમનો ફોરેન્સિક રિપોર્ટ સામે આવ્યો અને જ્યારે ખાસ કરીને ફોરેન્સિક રિપોર્ટની અંદર જે ઈજાઓ બતાવવામાં આવી હતી એના ઉપરથી. પરંતુ હવે વાત કરીએ ફોરેન્સિક રિપોર્ટ પછીનો પહેલો એવો રિપોર્ટ સામે આવ્યો જેમાં 25 ઈજાઓ ઓછી બતાવાઈ હતી, જેના વિશે આપણે કાલે વાત કરી હતી કે શા માટે આ કોઈ બેદરકારી છે કે પછી કોઈ ષડયંત્ર છે. ગોંડલ પોલીસ ઉપર સવાલ ઉભા થયા હતા, જેતપુરના જે પોલીસ છે એના ઉપર સવાલ ઉભા થયા હતા. ખાસ કરીને 25 ઈજાઓ ઓછી કેમ, એક મુખ્ય સવાલ હતો, કારણ કે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ તો ક્યારનો આવી ગયો હતો. ફોરેન્સિક રિપોર્ટના જે તે ડોક્ટર હતા એ લોકોના નીચે સહી સિક્કા પણ જોવા મળ્યા હતા. તેમ છતાં પણ પહેલા રિપોર્ટમાં સીધી 25 ઈજાઓ ઓછી કરી દેવામાં આવી હતી. ને ખાસ કરીને દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા એવું પણ લખવામાં આવ્યું હતું કે જે લોહીના ડાઘ ન દેખાડ્યા હતા. શા માટે ન દેખાડવામાં આવ્યા હતા તે એક સૌથી અગત્યનો સવાલ હતો. ને આ 25 જેટલી ઈજાઓ છે કે તેમને દાઢીના ભાગમાં વાગ્યું હતું, માથાના આગળના ભાગમાં એમને આ ઈજાઓ થઈ છે, ડાબી બાજુ ઈજાઓ થઈ છે, ગાલ ઉપર નાની મોટી ઈજાઓ થઈ છે, કાન ઉપર અનેક એવા શરીરના એમના અંગ છે, દરેક જગ્યાએ ક્યાંક ઈજાઓ થઈ હતી. તેમ છતાં પણ એ ઈજાઓ બતાવવામાં આવી નહોતી. એટલે દરેક સવાલોની વચ્ચે અત્યારે હાલ તમે જે પ્રમાણે આગળ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે અત્યારે જાટ સમાજ છે તે ક્યાંક લડી લેવાના મૂડમાં છે. એ લોકો દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો અમે લોકો રાજસ્થાનમાં એક થઈ શકતા હોય તો પછી હવે અમદાવાદ અથવા તો ગાંધીનગર વિધાનસભા સુધી પહોંચવામાં પણ ક્યાંક વાર નહીં લાગે. એટલે હવે એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે આજે કેસ સામે આવ્યો છે એમાં હવે કદાચ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ને ખાસ કરીને જાડેજા પરિવાર છે એ લોકો ઉપર સવાલો ઉભા થઈ શકે છે. એ એટલા માટે કારણ કે સવાલ અહીંયા ઘણા બધા એ ઊભા થાય છે, પણ એમના જવાબમાં એ છે કે જો ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હોય તો હવે એ છે કે પોલીસના દાવા ઉપર જે ગુજરાત હાઈકોર્ટ છે એ ભરોસો કરે છે કે પછી કોઈ બીજી એજન્સીને તપાસ સોંપે છે. કારણ કે પહેલેથી હંસિની તને ખબર છે કે જે રીતે એક જ માંગ છે કે સીબીઆઈ તપાસ થવી જોઈએ. સીબીઆઈ તપાસ કેમ નથી થતી?
કેમ ગુજરાતની પોલીસ છે હમ. એ આ બધામાં ક્યાંક કાચું કપાઈ રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કેમ હમ. ગણેશ ગોંડલ છે કે જયરાજસિંહ જાડેજાને બચાવવાના પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે. બે મુદ્દા આપણે જોયા હા. કે ગોંડલ જે આખો મુદ્દો સામે આવ્યો છે એમાં જે બે મુદ્દા કે એક તો હમ. ડોક્ટર ઉપર કોનું દબાણ હતું કે એમણે બે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યા હા. અને બીજું કે આ બસના માલિક કે ડ્રાઈવર સાથે શું કનેક્શન છે ગોંડલ પરિવારનું. હમ. એટલા માટે હવે આ બંને ઉપર જ્યારે હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ થઈ છે તો ગુજરાત હાઈકોર્ટ આમના ઉપર કેવો ચુકાદો લઈને આવે છે પણ આપણે જોવાનું છે. કારણ કે એમને જે પોલીસે કામગીરી કરી છે એ સાચી લાગે છે કે પછી હજુ હાઈકોર્ટને પણ ક્યાંક એવું લાગે છે કે આ બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક એવું છૂટી રહ્યું છે કે જેમના લીધે જે જાટ સમાજ છે તે મેદાનમાં છે. કારણ કે પહેલી વખત ક્યાંક એવું લાગે છે કે હવે આમને સામનેની ટક્કર થઈ રહી છે. હા. દિવસે ને દિવસે આપણે જોયું કે ભીલવાડાની અંદર જબરદસ્ત રેલી થાય એ પછી ક્યાંક ને ક્યાંક વિધાનસભાની અંદર સંસદની અંદર બધી જ જગ્યા પર આ મુદ્દો ગુંજ્યો છે. છેક જયપુરની અંદર અને ત્યાંના જે ઘણા બધા લોકો છે તેમના નિવેદન પણ આપણે આજના દિવસ સાંભળ્યા હતા કે જયપુરની અંદર જબરદસ્ત રેલી ભલે માણસો ઓછા હોય પણ એ દરમિયાન એ લોકોએ હુંકાર કર્યો છે કે અમે તમને કહી રહ્યા છીએ કે કાલે તમારો દીકરો પણ આ જગ્યા ઉપર હોઈ શકે છે. અત્યારે રતનલાલ જાટ છે એમનો દીકરો એ જગ્યા ઉપર હતો, એમનું મોત થઈ ગયું છે. તો તમે બધા જ લોકો મેદાને આવો, એમને ન્યાય અપાવવા માટે મેદાને આવો. સૌથી પહેલા ત્યાંના જે લોકો છે એ છે કે જાટ સમાજની સાથે ક્ષત્રિય સમાજ પણ મેદાનમાં છે. ક્ષત્રિય સમાજે પણ હુંકાર કર્યો છે કે આજે આ રતનલાલ જાટનો દીકરો આ જગ્યા ઉપર હતો કે એમનું મોત થયું છે. કાલે કોઈ તમારો બીજાનો પણ દીકરો હોઈ શકે છે. એટલે આપણે બધાએ બોલવાનું છે. 36 સમાજે ભેગા થવાનું છે. કોઈ એક સમાજ ભેગો થશે તો અહીંયા ન્યાય નથી મળવાનો. એટલે દરેક સમાજને રાજસ્થાનની અંદર ભેગો થવાનો હુંકાર કરવામાં આવ્યો છે. સૌથી પહેલા તો જે ક્ષત્રિય સમાજના જે મહિલા અગ્રણી છે આપણે એમને પણ સાંભળીએ અને ખાસ કરીને જે જયંત મુંડ છે જે પહેલેથી આ મુદ્દાને લઈને ચર્ચામાં આવ્યા છે, એમણે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે, એમને પણ સાંભળીએ. કારણ કે એમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે જયરાજસિંહ જાડેજાએ આટલા ગુના કર્યા છે, એમની સામે પણ કોઈ બોલવા વાળું નહોતું. પરંતુ આ વખતે પહેલી વાર એમને કોઈ એવો પરિવાર મળ્યો છે, એવો કોઈ સમાજ મળ્યો છે જેમને પડકાર ફેંકી રહ્યો છે. એટલે કે એમને જાટ સમાજ મળ્યો છે, એમણે અમારી સાથે પંગો લીધો છે એટલે અમે મૂકવાના તો નથી. સૌથી પહેલા તો આપણે જે આ જયંત મુંડ છે જે એડવોકેટ એમને પણ સાંભળીએ અને જે આ ક્ષત્રિય સમાજના મહિલા અગ્રણી છે તેમને પણ સાંભળીએ. आज आपके बीच में ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि घटनाक्रम ये था कि जो राजकुमार के पिताजी रतनलाल जी और राजकुमार दोनों मंदिर के दर्शन करके निकल रहे थे। तो वो जो गोंडल जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे जो शहर के अंदर जो जयराज सिंह जडेजा और गणेश जडेजा जो घर है उसके सामने ब्रेकर पे पिताजी बाइक से उतर जाते हैं कि यार मेरे को डर लग रहा है, मैं बाइक चलाऊंगा। मामला ये था। ये दोनों पिता पुत्र आपस में बात कर रहे थे। इतने में अंदर से गणेश आवाज देकर अपने सिक्योरिटी को कहता है कि भाई की इनको अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया। अंदर अब ये है कि अपना भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, हर जगह इंटेलिजेंट था, स्पोर्ट्स पर्सन था। उसका चित्तौड़ियन स्कूल के अंदर भी मेरिट में रहा है, डीपीएस के अंदर भी पढ़ाई के दौरान भी अच्छा उसका मेधावी छात्र रहा है, अदर एक्टिविटी में भी बहुत मेधावी रहा है। तो हो सकता है कि उसने अंदर गाली दी है या जो बदतमीजी की तो उसने उसका जवाब दिया होगा। और जवाब के बदले में जब उसने दी उनको जवाब, उसके बदले में इन लोगों ने उसके साथ में इतने क्रूर तरीके से मारपीट की है। उसके बाद में इनके पिताजी उसको घर ले जाते हैं, किराए का कमरा एक अलग दिला रखा था पढ़ाई के लिए। फिर ये इनको सुबह ये जाते हैं बच्चे के पास में कि बेटा कोई ना, अपन कोई अब तू तैयारी कर, अच्छी नौकरी लगेगा, बाद में बदला ले लेंगे। और सुबह जब पिता इनके पास में जाते हैं तो बच्चा गायब मिलता है। अगले पूरे दिन ये सबसे बातचीत करते हैं, ये सिस्टर है ये सबसे बातचीत करती है, पूरे दिन नहीं मिलते हैं। तो ये पुलिस थाने में जाते हैं कि मेरा बेटा कल रात से गायब है और मेरे बेटे के साथ में इस तरीके से यहाँ का जो पूर्व विधायक है, प्रेजेंट में जो विधायक का है जो गीतीबा जडेजा, उसके बेटे ने से मारपीट की है। पुलिस वाले मामला नहीं दर्ज करते हैं। 4 तारीख को पुलिस के पास में चक्कर काटते हैं, वहां जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो 4 तारीख को शाम को हम लोग एसपी के पास में जाते हैं, डीजीपी के पास में जाते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं, हम लोग हर जगह मेल करते हैं। उसके बाद में वहां का एसपी इनको ये कहता है कि चलो आपकी मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूं। तो 5 तारीख को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट होती है, सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद में शाम तक हम लोग कहते हैं कि साहब मारपीट हुई है। तो वो विधायक, वो जो एसपी बोलता है इनको कि यार तू विधायक का नाम क्यों ले रहा है, बहुत पावरफुल लोग हैं, तेरा बेटा मैं ढूंढ दूंगा। 6 तारीख को सुबह रतनलाल जी के पास में एसपी का फोन आता है, उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमने मीडिया को दिया है, हर जगह एविडेंस में दिया है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ एसपी कह रहा है कि यार रतनलाल जी आपका बेटा मैं ढूंढ के दे रहा हूँ, आपका बेटे को मैंने ट्रेस कर लिया है,
तू चिंता मत कर, और तेरा बेटा जो मंदिरों में यहाँ जाता है, तेरा बेटा मेरे नशेड़ियों की संगत में है, मतलब कि उसको नशेड़ी साबित करना चाहती है पुलिस। लेकिन रतनलाल जी बोला कि साहब वो ठीक है, लेकिन आप मेरा बेटा ढूंढ के दे दो। तो उन्होंने बोला बेटा ट्रेस कर लिया, तुम चिंता मत कीजिए। अब शाम को उस वही पीआई गोस्वामी इनके पिताजी को जूनागढ़ साइड में ले जाता है। मान लो घटना तो ये टोंक रोड की तरफ, और पिताजी को लेके जा रहे हैं सीकर और झुंझुनों के अंदर कि यार सीकर बस स्टैंड पे ढूंढते हैं, रेलवे स्टेशन पे। इस प्रकार पुलिस ने 6 और 7 तारीख को गुमराह किया। 8 तारीख को हम लोग फिर जाते हैं कि यार कहाँ गया वो तो ढूंढो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं लगा हुआ हूँ। तो इतने में क्या कि जो वहां के जयराज सिंह जडेजा के जो सपोले हैं, जो उसके आसपास वाले, हमें कहते हैं कि साहब आप यहाँ चक्करों में मत पड़ो। हमें फिर बाद में पता चलता है कि ऐसी तो यहाँ 15-20 घटनाएं और हो चुकी, और वो लोग कहते हैं कि साहब इनके चक्कर में मत पड़ो, आपके बेटे को मार दिया, आप कोर्ट में जाओ। तो 9 तारीख को वहां से 300 किलोमीटर दूर ये जाते हैं वहां पे हेवियस कॉप करने के लिए, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाने के लिए कि भाई कोई गुम हो गया और उसके लिए। तो वहां हमारी पूरी फाइल रेडी हो जाती है। मैं लगातार संपर्क में था, वहां वकील अपने हैं। इतने में ये जो बहन बैठी है, इसको रात को 9:30 बजे पुलिस घर से उठाती है और इनके घर वालों को ले जाए, कहते हैं एक डेड बॉडी मिली है। रात को 9:30 बजे जबरन एक डेड बॉडी इनको दिखाती है, तो वो तो उसकी राजकुमार की थी। 10 तारीख को हम पूरे दिन लड़ाई लड़ते हैं कि भाई इसका मेडिकल करो दोबारा, आप ये करो। तो हमें कहते हैं कि चुपचाप या तो दाह संस्कार कर लो, वरना यहाँ लाठियां पड़ेंगी, भग जाओ यहाँ से। अब कहानी का ट्विस्ट आप देखिए, 3 तारीख को बच्चा सुबह गायब होता है, 4 तारीख को सुबह मोर्चरी के अंदर डेड बॉडी मिलती है, और वो वहां के सिविल हॉस्पिटल, राजकोट के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल में बॉडी रहती है। बॉडी का पहला जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें बॉडी पे 22 चोटों के निशान है। तो उनको डर लगता है डॉक्टरों को, तो वो कहते हैं कि आप एक बार यूनिवर्सिटी में और करवा लो, मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर है वो साफ स्पष्ट 3 जनों की टीम कह रही है कि 30 साल के हमारा जो इतिहास है, हमने जो इतने मेडिकल्स किए हजारों, उसमें ऐसी चोटें कभी नहीं है। उसके जांग की हड्डी टूटी हुई मिली, उसके जो गुप्तांग है उन पे चोट मिली, उसके पिछवाड़े के अंदर उसके छेद मिला, उसके पैर की जो ये हड्डियां हड्डी की, ये सारी की सारी टूटी मिली, हाथ की अंगुलियां टूटी हुई थी, उसकी आंखों पे जख्म थे, उसके सिर पे जख्म थे। और डॉक्टरों ने कहा कि ये साफ साफ इसके अंदर ये मर्डर हुआ है। सिविल जो हॉस्पिटल में 4 तारीख को डेड बॉडी है, उसके अंदर भी पुलिस ने ना तो मिसिंग पोर्टल जो गुजरात के ऊपर अपडेट करती है कि एक अननोन डेड बॉडी मिलती है, ना पुलिस वहां पे ये बताती है कि आसपास के व्हाट्सएप ग्रुप, जो पुलिस के ग्रुप में ये डालती है कि ऐसी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद में लगातार 9 तारीख तक गुमराह करना, फिर पूरा प्रेशर पड़ता है राजस्थान से, जो लोग ट्वीट करते हैं, इतने नेता बोलते हैं। 13 तारीख को पुलिस इस मामले में क्या करती है कि एक बस वाले को पकड़ के लाती है और कहती है इस बस से एक्सीडेंट हुआ है। अब मेरे सवाल ये हैं, जो सिस्टम से सवाल है, जो यहाँ की आईबी सीआईडी जो हमें सुन रही है, कि 13 तारीख को बस का एक्सीडेंट तुम दिखा रहे हो, तो वो बस वाले का बयान था कि 4 तारीख को मेरे से एक्सीडेंट हुआ था और मैंने मेरे सेठ को बता दिया। तो 4 से लेके 13 तारीख तक इस बात को छुपा के क्यों रखा? ऐसा कौन सा एविडेंस छुपाना चाह रहे थे? बस के ऊपर जहां चोट ये दिखा रहे कि बस से एक्सीडेंट हुआ, तो बस से एक्सीडेंट होता तो या तो उसके शरीर के लोथड़े उठ जाते, या शरीर के एक जगह से टूटती, कोई उसका कुल्ला टूटता, उसका सर फटता, उसका लीवर फूटता। शरीर पे इतनी चोटें क्यों हैं? उसके बाद में 6 तारीख को एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि इसकी शरीर पे 42 चोटों के निशान थे। उसके बाद में एसपी अपने बयान से बदल जाता है। इसके साथ में हम लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने पूरी सूचना क्यों नहीं दी और 0 एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे? इसके साथ में साथियों, आपको मैं एक बात और बताना देना चाहता हूं कि इस मामले के अंदर पहला ऐसा मामला है जिसमें गुजरात विधानसभा में 3 एमएलए ने ये बात रखी है। इसके साथ में राजस्थान के 24 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, गुजरात के सीएम को लिखी है। राजस्थान के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने ये बात रखी है। एक राज्य मंत्री है अपने भागीर जी चौधरी जी ने बात रखी है, हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में बात उठाई है, उमेदाराम बेनीवाल जी ने ये बात उठाई है, हमारे अमराराम जी ने ये मुद्दा चिट्ठी लिख के 2 बार अवगत करा दिया, राहुल कसवा जी ने चिट्ठी लिखी है। पूरे प्रकरण के अंदर साफ साफ ये है कि बहुत ही बड़ी शक्ति जो जयराज सिंह जडेजा और गणेश जडेजा को बचाना चाह रही है। आज गुजरात की सारी मीडिया, तमाम जितनी भी मीडिया, छोटे से लेके बड़ा पत्रकार, लगातार 27 दिन से इस मामले को उठा रहा है। और इस मामले को लेके हमने इस राजस्थान के, चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे अन्य बिरादरियों के जितने नेता हैं, जितने एमएलए हैं, जितने सांसद हैं और जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने छात्र नेता हैं, उन सारों को मैं लगातार अवगत करा रहा हूं। और
हमने भीलवाड़ा में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, वहां से बात रखी, और लगातार मेरे पास तो उनकी, आप सोशल मीडिया चेक करोगे ना, तो लगातार वो गणेश जो जडेजा है अपने सोशल मीडिया डेली डाल रहा है। उसने वहां मीटिंग भी की है 5 दिन पहले। उसके पिता ने कहा कि यहाँ का महाराजा तो हम ही है, मेरा बेटा अगला विधायक होगा। लगातार सोशल मीडिया पे मेरे को बोल हिंदुस्तान जो अपना चैनल जो लगातार कवरेज कर रहा है, या कुलदीप भाई साहब की मेल के ऊपर लगातार धमकियां आ रही हैं। लगातार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर वो ट्वीट, जो क्या नाम की स्टोरियां लगा रहे हैं गणेश गोंडल की, ये वो कि मार देंगे, 20 मुकदमे और हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए। जो दलित राजू सोलंकी था वहां पे, उसके जो एनएसयूआई का वो जिलाध्यक्ष था, आप ये गूगल पे सर्च करना, ग्रोक की जो एआई है ना, उसकी अभी जो नई आई है, उस पे आप तो ये सर्च कर लेना कि जयराज सिंह जडेजा का आपराधिक पृष्ठभूमि या गणेश गोंडल कौन है। सारी की सारी स्टोरियां उस पे, मैं नहीं कह रहा है, ये सारा सारा उस पे आ जाएगा। उस पे साफ साफ राजू सोलंकी जो युवा नेता था वहां का, उसके साथ में इन लोगों ने बहुत ही बेरहम तरीके से मारपीट की। उसके बाद में दलित समुदाय के सारे लोग, गुजरात के लोगों ने जूनागढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उस मामले में गणेश 4 महीने की जेल काट के आया है। उससे अभी ये छूट के आया था, छूट के आके ये अपने घर पे बैठा था। इधर से ये राजकुमार निकला और उसके साथ में फिर उसने, उसके जितने अभी तक के केस हैं, सारे केसों में हाथ पैर तोड़ता है, उनके साथ में बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से ये मारपीट करता है। उनके घर वालों को हर केस के अंदर, जैसे राजू सोलंकी जो दलित नेता था, उसको भी इन लोगों ने कुछ सीटों के अंदर पूरे परिवार को, उसके 2 बेटे, उसकी बीवी, उसके पापा मम्मी, उसके साथ ही वो जेल में डलवा रखा है। ऐसा ही इससे पहले आशीष कुंजड़िया जो वहां पे एक कांग्रेस का नेता था, उसके साथ में सेम उसने ऐसा किया। ऐसा ही इससे पहले 2004 के अंदर नीलेश राय ने हत्याकांड में किया। ऐसा ही इसने बीजेपी का एक नेता इसके सामने खड़ा हुआ, उसको फायरिंग से मरवा दिया। और ऐसा ही कार्यक्रम इसने थोड़े दिन पहले अपने इस प्रकरण में, एक छात्र नेता ने आवाज उठाई थी, पाटीदार समुदाय का छात्र नेता था, आप सर्च मारोगे सारा आएगा। सारे पाटीदार इसके विरोध में खड़े हुए, उसके साथ में सरेआम इसने मारपीट की। एक गांव में एक राजपूतों के लड़के ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके साथ इसने मारपीट की। और पूरे गोंडल के अंदर ये जो, जिस राजपूत बिरादरी से ये जो विधायक है, इसके खिलाफ पूरी 99% बिरादरी इसके खिलाफ है। लेकिन गुजरात के अंदर पूरी मीडिया बोल रही, यहाँ के नेता बोल रहे, साफ साफ लोकतंत्र की इस देश में हत्या हो गई है। लगातार ट्विटर के ऊपर कल ट्रेंड किया, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। मैं तो आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि हम इतने लोग हैं भाई, आप लोग यदि अपने अपने स्तर पे, कोई यूनिवर्सिटी में कोई करेगा, कोई सीकर में करेगा, कोई झुंझुनू में करेगा, कोई अपने अपनी तहसील स्तर पे, यदि हम लोग टीम बना के इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो ये जो एक पाव भाजी बेचने वाले जो एक परिवार है, गरीब परिवार, रतनलाल जी की सच में इतनी बुरी दयनीय स्थिति है, इनकी बेटी बेटी है, इन्होंने जितना कुछ कमाया ना गोंडल के अंदर, आज भी 35 रुपए में पाव भाजी बेच रहे हैं। इन्होंने 1 रुपए में भाजी बेचना शुरू की थी, आज 35 में। किसी व्यक्ति से पूछेंगे गोंडल के अंदर ये है कि रतनलाल कौन, बोला वो पाव भाजी वाला रतनलाल, दूसरा कोई रतनलाल जानते नहीं। इनका इतना अच्छा व्यवहार है वहां पे, एक भी आदमी इनके लिए ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में बदसलूकी की हो। इतना सज्जन व्यक्ति, और इन्होंने जितना कुछ कमाया, प्लॉट वगैरह सारे गिरवी रख के इसको, बच्चे को बाजीराव से कोचिंग करवाई, उदयपुर से इसको पढ़ाई कराई, अलग से कमरा दिला रखा था। तो मैं सारे भाइयों से मैं तो यही कह रहा हूँ कि सारे लोग, ये जो एक यूपीएससी का सपना लेके, कि जो ये चाह रहा था कि मैं इस सिस्टम में एक बड़े पद पे जाके, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर मैं एक नया बदलाव लाने की जो सोच रखने वाले इस परिवार के लिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए। और इस मूवमेंट के अंदर, ये जो भाई कह रहे थे अभी, मुकुल भाई की अभी तक कोई कमेटी नहीं है। सारे लोग, कुलदीप भाई साहब हो गया, मैं हो गया, रतनलाल जी, सब अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। अभी तो कोई ये भाई भीलवाड़ा से भी आए हुए हैं, अभी यहाँ आइसक्रीम बेचने वाले भाई हैं अपने यहाँ पे जयपुर में, वो आए हुए हैं। सारे लोगों का ये है कि आप लोग सब तय कर लोगे ना इतने जने, तो यार इतने जने तो इस देश के अंदर क्रांति ला सकते हैं हम लोग। देश की आजादी के अंदर सिर्फ 1% लोगों ने देश की आजादी के समय अपनी भागीदारी निभाई थी, और अंग्रेज इस देश से चले गए। और ये जो अंग्रेजी रूपी जो व्यवस्था है गोंडल और राजकोट की, इसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का धरातल पे हमें साथ की जरूरत है। आप लोगों की हमें सोशल मीडिया पे जरूरत है। आप लोगों की हमारे हर जगह जहां लड़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपकी जरूरत है। और ये तो ऐसा मुद्दा है कि एक राजस्थानी का मुद्दा है। आज राजस्थानी पूरे देश और विदेश में अपने लोग बैठे हैं। आज राजकोट में मारा है, कल को ये लोग मैसूर में मारेंगे, परसों ये आसाम में मारेंगे। ऐसे ही हावी रहेगा इस देश के अंदर। तो हमारे तो इतने भाई 90% लोग भीलवाड़ा के बाहर काम कर रहे हैं।
तो सारे लोगों से मेरी तो ये अपील है कि आप इस मुद्दे के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगली बार बड़ी तादाद में जुड़े और इस बात को अधिक से अधिक सरकार तक बात पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें। राजकुमार जाट ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी हूँ, क्योंकि वो एक जाट समाज को बच्चों को नहीं हो, वो एक जाट समाज को बच्चों को नहीं हो, वो अपने सभी समाज को बच्चों हो, क्योंकि यूपीएससी यदि वो पास कर ले तो वो एक अधिकारी बन तो, और अधिकारी जो है एक समाज को कौन है, अधिकारी 36 कौम को बच्चों हुए हैं। एक में वीडियो सुने हो सोशल साइड पे कि एक अधिकारी बोले हैं कि माँ बाप अलग रहे हैं, बच्चों अलग रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कौन सा अधिकार है कि बच्चों अलग रहे, माँ बाप अलग रहे? मेरा दोनों बच्चा है, दोनों अलग रहे, मैं भी जयपुर में रहूं और मेरे से 10 किलोमीटर मेरी बच्ची रहे, 10 किलोमीटर मेरा बच्चों रहे, क्योंकि अपना बिजनेस, अपना काम और अपना व्यापार करेगा तो बच्चा कहीं अलग कौन रहेगा कहीं, या अधिकारी का बोलबा के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरे अधिकारी बोले कि नशा करता था। अरे नशा करता था तो वो बच्चा यूपीएससी कैसे पास कर रहा था, इतने ऊपर तक कैसे आया? ये मतलब बनावटी बातें करके क्यों मतलब दुनिया को बरगला देना और बच्चे के ऊपर। अरे कम से कम उस बच्चे की तुमने हत्या तो कर दी, पर उस बच्चे को इतना बदनाम तो मत करो कि वो नशा कर रहा है, माँ बाप से अलग रह रहा है। भाई माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए वो बच्चा अलग रह रहा है। तो इस तरह की जो लाछन लगाए गए वाकई में बहुत ही शर्मनाक है। और जो भी हो, वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे अन्य समाज का हो, वो किसी भी समाज का अपराधी होता है और उसको सजा मिलनी चाहिए। और इस बच्चे के लिए बोल रहे हैं, अभी जैसे मैंने सुना कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। अरे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? आज हमारे यहाँ छोटा सा कोई बात हो जाती है, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री का बच्चा है, वो एमएलए का बच्चा है, कोई सांसद का बच्चा है। और ये बच्चा है जो एक आम आदमी का बच्चा है, और आम आदमी का बच्चा तो ऐसे माना जाता है कि रोड पे जिस तरीके से मार के और फेंक दो। अरे ये बात नहीं है। एक मैं भी माँ हूं, उस माँ पे सोचे कि उस माँ पे क्या बीती होगी जब उसका लाल गया होगा। वो सोच रही थी कि मेरा लाल जो है यूपीएससी पास करके मेरा लाल अधिकारी बनेगा और मेरा छाती से चौड़ी हो जाएगी। उस बच्चे को देखकर एक समाज की, एक 36 कौम की छाती चौड़ी हो जाएगी। वो लाल आज चला जाता है। ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है। ये एक जाट समाज के लिए नहीं है, ये पूरे 36 कौम के लिए शर्म की बात है। हम सबके लिए शर्म की बात है कि क्या हम एक बच्चे को न्याय नहीं दिला सके। एक 4 लोग आ गए, मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ मैंने सोशल साइट खोली और एक उसमें लाइव में चल रहा था तो मैं तुरंत घर से उठ के और भाग के यहाँ पर आई थी। क्या जयपुर में इतनी पब्लिक नहीं है? कल मूर्ति तोड़ी थी, मूर्ति जब खंडित करी थी तो हजारों लाखों बच्चे इकट्ठा हो गए थे, सभी समाज के हो गए थे। आज यहाँ क्यों नहीं आया एक बच्चा? वो भी आपके समाज का बच्चा है, आना चाहिए उस बच्चे के लिए, न्याय के लिए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, मैं सभी समाज के नेताओं से भी निवेदन करती हूँ कि इस बच्चे के लिए, अरे ये तो जयपुर का सेंटर है, यहाँ तो किराया भी नहीं लगता, आपके पास कुछ नहीं है। आप दूर दूर 500-500 किलोमीटर चले जाते हैं नेतागिरी के लिए, माइक पकड़ने के लिए। क्या इस बच्चे के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते थे? शर्म करो और उठो और इस बच्चे को न्याय दिलाओ। यदि आप इस बच्चे को न्याय नहीं दिला रहे हैं तो कल को आपका बच्चा भी इसी तरह एक्सीडेंट में मारा जाएगा और उसको एक्सीडेंट करार कर दिया जाएगा, हत्या करके उस बच्चे को एक्सीडेंट करार कर दिया जाएगा। माएं रोती रहेगी क्योंकि आजकल माओं के एक ही लाल होते हैं और वो लाल चले जाए तो उस माँ पर क्या बीतती होगी जो हर पल अपने बेटे के घर आने का इंतजार करती है। तो मैं निवेदन करती हूँ सभी से और सभी भाइयों से कि, और महिलाओं से भी निवेदन करती हूँ, एक मैं छत्राणी होने के नाते आपको वचन देती हूँ कि जहां जरूरत पड़े किरण शेखावत वहां बैठने के लिए तैयार है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं आगे बैठने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ आगे आने के लिए तैयार हूँ। इस बच्चे के जो है न्याय के लिए हम सब तैयार रहेंगे। और इसमें सीबीआई जांच के तो क्यों नहीं सरकार दे रही? क्यों डर रही है सरकार सीबीआई जांच के लिए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, और हत्या हुई है तो वैसे हो जाएगा कि भाई हत्या हुई है। पर सीबीआई जांच दे दे, आज छोटे छोटे बातों पर सीबीआई जांच दे दी जाती है, पर इस बच्चे पे क्यों नहीं दी जा रही? इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है ये, और ये दिख रही है, सभी को दिख रहा है कि आप ये मत सोचो कि वो कोई बीजेपी का है, कोई आरएलपी का है, कोई कांग्रेस का है। ये बच्चा जो समाज का था, ये बच्चा सबका था, हर माँ का लाल था, हर माँ का बेटा था, हर बहन का भाई था, हर बाप का बेटा था। तो आप सब लोगों से निवेदन यही है कि इस बच्चे की न्याय के लिए आप सब लोग आए, और जहां मेरी जरूरत पड़े तो मैं हर पल आपके लिए तैयार हूं। आप मुझे जब चाहे बुला सकते हैं। એટલે ક્યાંક જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ જાટ સમાજ છે એ લોકોમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે
અને ક્ષત્રિય સમાજ પણ એ લોકોની સાથે આવ્યો છે. એટલે હવે આગામી દિવસમાં કદાચ જાડેજા પરિવાર છે એ લોકોના ગ્રહો બદલાઈ શકે છે એવું ચોક્કસ રીતે માની શકાય છે. કારણ કે પહેલી વખત એવું થયું છે કે કોઈ એવી ઘટના સામે આવી છે કે જેમાં સામે પક્ષના લોકો છે એ પણ હવે તૈયારીઓ સાથે મેદાન આવી રહ્યા છે. ને જે પ્રમાણે તમારા દ્વારા પણ વાત કરવામાં આવી કે હાઈકોર્ટ સુધીની પિટિશન દાખલ કરી દેવામાં આવી છે અને એ લોકોની સીધી જ ગણતરી છે કે એ લોકો જો ત્યાં એક થઈ શકતા હોય તો કદાચ ગાંધીનગર અથવા તો પછી અમદાવાદ આવતા વાર નહીં લાગે. બિલકુલ. તમારું શું માનવું છે આ વિષયને લઈને? અને જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ જાટ સમાજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર આવવાની વાતો કરવામાં આવી રહી છે એને લઈને તમે શું વિચારો છો? અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તેની સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.